ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इज लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट्स. Logarithmic and exponential. So there are some formulae which you should know. उसके ऊपर based we are going to practice some of the questions also today. Okay. ओके, तो ये हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं. log 1 plus x upon x. If you put x here 0, so what is log 1? 0. log 1 is always 0. ठीक है. log 1 0 by 0 फॉर्म. इसका आंसर डायरेक्टली आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते. सो रिमेंबर, when x is tending to 0, log 1 plus x upon x gives you 1. Okay. Now look at this. 1 plus x whole power 1 by x. यहाँ पे x is tending to 0. So यहाँ पे what is this value? 1 plus x is something near to 1. आप ऐसा नहीं कह सकते ये 1 से बड़ा है. क्यों? क्योंकि x can be negative also. It is something very close to 0. So 1 plus x whole power 1 by x gives you e. Okay, where x is tending to 0. Similarly, look at this fourth one. Limit x tends to 0, e की power x minus 1 upon x gives you 1. और अगर यहाँ पे exponential की जगह कोई भी और base है, except for e, if you have any other number a, तो a की power x minus 1 upon x give you a. यहाँ पे अगर e बन जाता है तो यही इसका स्पेशल फॉर्मूला बन जाता है, log e to the base e gives you 1. So please remember all these formulae. इसके ऊपर बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं. We'll see directly. So look at this question. Limit x tends to 0, e to the power 5x minus 1 upon x. So we saw this. E की power x minus 1 upon x क्या होता है? 1. When x tends to 0. यहाँ पे है e की power 5x. So when x tends to 0, 5x will also tend to 0. So either you can substitute 5x as y and change the entire limit to limit y tends to 0, e to the power y minus 1 upon what is x? Y by 5. So y by 5 ऐसे. So applying the formula on this part, what do you get? This is 1. 1 into 5, answer is 5. ठीक है. सिंपल ये 4 फॉर्मूले हैं, आप इनको याद करें और उसके ऊपर बेस जो भी सब्स्टिट्यूशंस है we can follow that. Okay, let's look at another example. Is everything clear? A to the power x minus 1 upon b to the power x minus 1 where limit x tends to 0. किससे मैच करता हुआ लग रहा है आउट ऑफ द 4 फॉर्मूले? थर्ड वाले से. क्या करेंगे इसमें मैच कराने के लिए? ऊपर एंड नीचे दोनों जगह if we divide by x. Good. So you can apply the formula here also, you can apply the formula here also. ठीक है. यहाँ पे ऊपर आंसर क्या आ गया डायरेक्टली? log a to the base e और यहाँ पे log b to the base e. What is log a upon log b? Log a minus log a minus b. No. In short, this is log of a to the base b. हाँ, दोनों का बेस सेम है तो यहाँ पे बेस चेंज हो गया. So this is your answer. Any doubt? अनन्या, त्र्यंबिका, तनय? No, ma'am.
इसमें क्या करेंगे, 2 की पावर x माइनस 1 किससे मिलता जुलता लग रहा है, थर्ड से, ठीक है, यहाँ पे x इज मिसिंग राइट, ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस पार्ट, कल सिखाया था ये rationalization, yes, so we'll apply rationalization for this part और फिर हम further solve करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो what is the rational counterpart for this, upon root 1 plus x plus 1, नीचे क्या आ जाएगा 1 plus x minus 1, नीचे आ जाएगा क्या x, ठीक, ऊपर आ गया 2 की पावर x minus 1 और इंटू रूट 1 plus x plus 1 तो है, अब आप अप्लाई कर सकते हैं लिमिट, इसका आंसर कितना हो जाएगा, दिस इज अप्लाइंग द फॉर्मूला log 2 to the base c, और यहाँ पे आप डायरेक्टली x को 0 डालोगे तो 1 plus 1 2 is the answer, so answer is 2 log 2, इसको आप 2 को उधर पहुंचा के 2 की पावर 2 log 4 पे लिख सकते हैं डायरेक्टली, any doubt anyone, so this is how रैशनलाइजेशन एंड ये एक्सपोनेंशियल वाले कंबाइन भी हो सकते हैं, आप सिर्फ इतना ध्यान रखोगे अगर आपको कभी भी पॉलिनोमियल टर्म्स में अंडर रूट्स दिखाई देते हैं जहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रही है तो ऑलवेज गो फॉर रैशनलाइजेशन। चलो लेट्स डू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, log 1 plus ax minus log 1 minus bx whole divided by x, limit x tends to 0। सबसे पहले तो आप x की वैल्यू डाल के देखते हैं बच्चों, x को 0 डाल रहे हो, व्हाट इज log 1, log 1 is 0, this is also log 1 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है राइट। चलो अब ये माइनस से होपलेस नहीं होना है, ये बताओ अगर ये पार्ट नहीं होता log 1 plus ax upon x किससे मैच हो रहा है, फर्स्ट वाले से, जहाँ पे a की वैल्यू वहां पे मतलब 1, ठीक है, ओके, सो लेट्स स्प्लिट दिस अपॉन x एंड दिस अपॉन x, दोनों पे इंडिविजुअली लगा सकते हो फॉर्मूला, क्या करेंगे ऊपर नीचे ऐसे बिल्कुल ठीक, लेट्स मल्टीप्लाई बाय a और यहाँ पे b से मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस b, ठीक है, तो ये माइनस इसी के साथ ले लेते हैं, ठीक है, b से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये माइनस इज टेकन हियर, नाउ जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला 1 a into what is this is 1 plus this is all again 1 into b, answer is a plus b, any doubt, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे को जल्दी से कौन बताने वाला है, यश यू विल टेल, सिंपल है, बताओ व्हाट वुड बी द आंसर, बिल्कुल ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं लगाया इसमें, बस चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 3 की पावर x minus 1 अपॉन रूट 2 plus x minus root 2, आप बताओ, यस, सो द की इज यहाँ पे हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो अंबिका किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मैम √2x प्लस √2, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, टू log 3 base c, 2√2, अच्छा आपने सॉल्व कर लिया, log 3 बेस c और नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, ओके राइट, तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, सो व्हेन यू अप्लाई a minus b into a plus b here, this is a square minus b square, so 2 plus x minus 2 and this is 3 की power x minus 1 as it is into 2 plus x plus √2 and limit x tends to 0, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, बचा x, now if you see
इस पूरे पे लग जाएगा फॉर्मूला. दिस इज इक्वल टू, यूजिंग दिस फॉर्मूला, इट इज log 3 to the base e. और अब आप x को यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हो. पुट x as 0, so √2 plus √2 gives you 2√2. इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2√2 को इधर पहुंचा दो, log 3 to the power 2√2. otherwise this is. Any doubts? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं. Okay. Look at this question. हाँ जी, तो ये किससे मिलता जुलता लग रहा है? log x minus 1 upon x. sorry. नीचे रखते हैं, ऊपर रखते हैं. अब देख के बताओ. सबसे पहले आप x की वैल्यू डालो, यहाँ पे डालोगे 0, तो ऊपर कितना आएगा? सॉरी गाइस, चलो अब देखते हैं. तो ऊपर क्या बना? 1 minus 1 0, log 1 again 0. दिस इज 0/0 फॉर्म फॉर श्योर. तो यहाँ पे तो हमारे पास जितने भी लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले थे, वहां पे दिस वाज टेंडिंग टू 0, जबकि यहाँ पे x इज टेंडिंग टू 1. तो अप्लाई करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? एग्जैक्टली. सो लेट्स टेक अनदर वेरिएबल y. क्योंकि x इज टेंडिंग टू 1, तो x minus 1 को हम y मान लेते हैं, ताकि when x is tending to 0, y will tend to, sorry, when x is tending to 1, y will tend to 0. ठीक है. Now change the entire question. Limit x tends to 1 will change to limit y tends to 0. x minus 1 is equal to y. And log, what is x from here? 1 को उधर भेज दो, y plus 1. अब देखो कुछ मैच होता हुआ लग रहा है. 1. So look here. So this limit log 1 plus x upon x, log 1 plus y upon y, just reciprocal हो गया इसका. Limit y tends to 0. Answer is 1 upon 1, 1. Okay guys, so look here. यहाँ पे सबसे पहले हम x को 3 डालेंगे, 3 की पावर e की पावर 3 minus e cube 0 upon 0 form. तो to apply one of these formula, x tends to 3 की जगह हमें limit tends to 0 पे shift करनी है. तो let's suppose y is equal to x minus 3, such that when x is tending to 3, y will tend to 3 minus 3, 0. Let's convert the entire limit to y. Limit y tends to 0. What is x? E की power, what is x? y plus 3. y plus 3 minus e cube whole divided by, what is x minus 3? y. So this will change to y. अब इसमें और उसमें अभी तो ये e cube extra दिख रहा है. If you see, e y plus 3 का मतलब क्या है? e cube into e to the power y minus e cube whole divided by y. यहाँ से आप e cube common लेंगे, so this will become e to the power y minus 1 upon y. Limit y tends to 0. Now applying the formula here, this is 1. So answer is simply e cube. Any doubts? So now let's start with a new topic, continuity. It is an extension of the previous topic, limits. चलिए, तो कल हमने डिस्कस किया था what was limits. कोई भी फंक्शन है, there was any function, when as x tends to c, what is the value that function tends to? This was limiting value for this function. Not at c, but in the neighborhood of c. Function की in the neighborhood of c
क्या वैल्यू फंक्शन टेंड कर रहा है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू. दिस इज इक्वल टू FC. ठीक है. कंटिन्यूटी क्या होता है बच्चों? जब लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन एट C के इक्वल हो जाता है तब हम बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस. फॉर एग्जांपल, so look at this function here. While drawing this function, you have to lift your pen. ठीक है. तो at this point C, if you see, function is discontinuous. ब्रेक आ गया है फंक्शन में. तो इसको हमने कैसे जाना? C से जस्ट पहले वैल्यू कुछ और है, C के जस्ट बाद वैल्यू कुछ और है. Function is discontinuous. So the first thing that should for continuity, left hand limit should be equal to the right hand limit. सबसे पहले तो हमें यही देखना है किसी भी पॉइंट पे इससे जस्ट पहले और इसके जस्ट बाद जो लिमिटिंग वैल्यूज हैं दे शुड बी इक्वल. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. व्हाट इफ you have this kind of function at C से पहले भी लिमिटिंग वैल्यू सेम है, C के बाद भी लिमिटिंग वैल्यू सेम है, तो LHL RHL तो इक्वल है, लेकिन at C वैल्यू समथिंग एल्स. Is it now continuous? It is still not continuous. तो एक और कंडीशन क्या है इसके लिए? These two limits should be equal and it should be equal to the value of the function at that point. ठीक है. तो इसको हम लिखेंगे कैसे मैथमेटिकली? For a function fx, for fx to be continuous at x is equal to c, what is the condition? Limit x tends to c fx should be equal to value at the c, value at c. Now कभी कभी हम देखते हैं कि फंक्शन पीसवाइज होता है, राइट? पीसवाइज होता है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालते हैं as we saw the breaking points of the function. तो उस केस में बच्चों जो ये वाला पार्ट होता है इसमें आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ेगी. तो वो हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx should be equal to limit x tends to c plus fx. ठीक है. And this should be equal to value of the function at c. I also told you c minus को हम लिमिट h पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं. c माइनस मतलब c से थोड़ा सा पहले. तो इसको हम लिखते हैं फंक्शन में डाल दो c minus h. Where what is h? h is something very close to 0. Similarly for the right hand limit, c plus का मतलब क्या है? c plus h, where h is a limitingly small value. This should be equal to fc. So for any point जहां पे भी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होगी, किसी भी पॉइंट c पे चेक करोगे तो this should be holding. This is how we'll do it. Let's take some questions on this. So look at this function fx is equal to, it's a piecewise function. For x greater than 1, 3ax plus b. x equal to 1 पे value है 11. x less than 1 पे 5ax minus 2b. It says this fx is continuous at x is equal to 1. So you have to find the value of a and b. अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा at x is equal to 1 पे, तो f1 must be equal to limit x tends to 1 fx, करेक्ट? 1 के पास और 1 पे वैल्यू सेम है. अब आप देखो 1 इज द ब्रेकिंग पॉइंट, तो 1 से पहले फंक्शन कुछ और है, 1 के बाद फंक्शन कुछ और है. तो इस लिमिट को हमें दो पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट. तो लेट्स टेक बोथ द लिमिट्स. व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट? Limit x tends to 1 minus fx. What is fx here? 1 minus पे 5ax minus 2b. And this should be equal to the right hand limit. Limit x tends to 1 plus. 1 plus पे function क्या है? 3ax plus b. अब कुछ भी नहीं करना है, बस वैल्यू डालो. 1 minus का मतलब 1 only. ठीक है. तो 1 डालो यहाँ पे. What do you get? 5a minus 2b. And यहाँ पे की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3a plus b. Both of them should be equal to f1, which is 11. So you have two equations, one from here, one from here. Just solve them and then you can find the answer. So as you told, answer is A3, B2. Solve them simultaneously.
तो खत्म। तो बेसिकली कंटिन्यूटी में वंस अगेन लेट्स जस्ट रिवाइज, आपको एक फंक्शन गिवन होगा, पीस वाइज होगा और लिखा होगा जो ब्रेकिंग पॉइंट है मोस्ट प्रोबेबली उसी ब्रेकिंग पॉइंट पे बोला जाता है फंक्शन कंटिन्यूअस है, या फिर आपको चेक करना होता है कि चेक करो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो व्हाट डू यू डू, उस ब्रेकिंग पॉइंट पे और उसके आसपास नेबरहुड में वैल्यू सेम होनी चाहिए, सेम है तो कंटिन्यूअस है अदरवाइज नॉट। अगर देखो वन पे, वन से पहले और वन के बाद फंक्शन चेंज अगर होता है तब क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालेंगे एंड देन पुट इट टू जो भी है। क्लियर, एनी डाउट्स? चलो हम आज की क्लास